Hello guys, welcome back to On Time Notes, and in this video we are going to cover Linux kernel, shell and system calls. So first we'll see Linux kernel. The kernel is the core of the Linux operating system and it manages hardware resources like the CPU, memory and devices. It acts as a bridge between hardware and the software, and the kernel ensures programs can run smoothly and share resources, and it also handles key tasks like process management, file system and device control. सो लिनक्स कर्नल में क्या है कि जो कर्नल है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एकदम इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड जो लिनक्स कर्नल है वो हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे कि सीपीयू, मेमोरी एंड जो भी डिवाइसेस है वो सबको मैनेज करता है। एंड जो कर्नल है वो एज ए ब्रिज बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एक्ट करता है। ये इंश्योर करता है कि जो भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं वो एकदम स्मूथली एंड रिसोर्सेज भी शेयर कर रहे हैं। मतलब जो भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं वो स्मूथली रन हो रहे हैं एंड रिसोर्सेज भी शेयर कर पा रहे हैं। एंड की टास्क लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम एंड डिवाइस कंट्रोल ये भी लिनक्स कर्नल ही हैंडल करता है। And now we'll see Linux shell. The shell is a program that provides an interface for users to interact with the operating system, and it takes user commands, interprets them and passes them to the kernel for execution. And examples of Linux shells include bash, zsh and ksh. It supports running commands, automating tasks with script and accessing files and programs. तो लिनक्स शेल क्या है कि एक प्रोग्राम है जो यूज़र कोई ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एंड ये यूज़र कमांड लेता है, उनको इंटरप्रेट करेगा एंड कर्नल को एग्जीक्यूशन करने के लिए पास करेगा। जो भी इंटरप्रेट उसने कमांड किया था उसको कर्नल के पास एग्जीक्यूशन के लिए पास करता है। एंड लिनक्स शेल के एग्जांपल्स है बैश, zsh एंड ksh। और जो भी कमांड्स रनिंग है या फिर टास्क जो भी ऑटोमेटिंग है विद स्क्रिप्ट्स एंड फाइल्स एंड प्रोग्राम्स को एक्सेसिंग करना है तो उसको लिनक्स शेल सपोर्ट करता है। नाउ विल सी लिनक्स सिस्टम कॉल. A system call is a procedure that provides the interface between a process and the operating system, and system calls let programs request services from the OS. They act as a bridge between user programs and OS kernel, and in Linux they switch from user mode to kernel mode to perform tasks. So Linux system call में क्या होता है कि ये एक प्रोसीजर है जो प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है। एंड अगर जो भी प्रोग्राम को ओएस से कुछ सर्विस रिक्वेस्ट करना है तो सिस्टम कॉल के हेल्प से वो कर सकते हैं। एंड ये प्रोग्राम एंड ओएस कर्नल के बीच में एज ए ब्रिज एक्ट करता है। सिस्टम कॉल्स को स्विच भी कर सकते हैं यूज़र मोड से कर्नल मोड। So this diagram represents the different types of Linux system calls, and they are information maintenance, process control, file management, device management and communication, and we are going to see them one by one. So now we'll see types of system calls in Linux. First is process control. Manages processes by creating, terminating or running programs. And the Linux system calls under these are fork function, and it creates a new process, exit function ends the process, and exec function replaces the current process with a new program. तो फर्स्ट है प्रोसेस कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोसेस क्रिएट, टर्मिनेट या फिर रनिंग प्रोग्राम्स है उन सबको मैनेज करता है प्रोसेस कंट्रोल। एंड प्रोसेस कंट्रोल के अंडर जो सिस्टम कॉल्स है वो है फॉर्क। तो इसमें क्या होता है कि न्यू प्रोसेस क्रिएट करना होता है तो फॉर्क यूज़ करते हैं। एग्जिट मतलब अगर प्रोसेस से एंड होना है तो एग्जिट यूज़ करेंगे। एंड ईएक्सीसी जबकि
करंट प्रोसेस को न्यू प्रोसेस से रिप्लेस करना होगा तो EXEC फंक्शन यूज़ करेंगे. सेकेंड इज फाइल मैनेजमेंट. It handles files related operations like creating, reading, writing, and the Linux system calls under these are open function. Opens a file but does not modify it. Second is read function. Reads data from a file and multiple processes can use this simultaneously. Write function. Writes data to a file and only one process can write at a time. Then fourth is close function. Closes an open file. सो सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम कॉल है फाइल मैनेजमेंट. एंड इसमें क्या होता है कि जितने भी फाइल रिलेटेड ऑपरेशन है, मतलब फाइल को ओपन करना, फाइल क्रिएट करना, फाइल रीड करना, वो सब फाइल मैनेजमेंट हैंडल करता है. एंड फाइल मैनेजमेंट के अंडर सिस्टम कॉल्स है. फर्स्ट है ओपन फंक्शन. तो इसमें क्या होता है कि फ़ाइल ओपन करेगा लेकिन वो फाइल को मॉडिफाई नहीं करेगा. सेकेंड इज़ रीड फंक्शन. इसमें फाइल से डेटा रीड करेगा एंड मल्टीपल प्रोसेस वो साइमल्टेनियसली इसको यूज़ कर सकते हैं. देन थर्ड है राइट फंक्शन. तो इसमें क्या होता है कि जो फाइल है उसको डेटा राइट करेगा एंड एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस राइट कर सकती है. एंड फोर्थ है क्लोज फंक्शन. तो इसमें क्या होता है कि जो भी फाइल ओपन की है उसको क्लोज कर दे. एंड थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम कॉल इज device management. It manages input output operations and the Linux system calls under these are IOCTL function and it is referred as an input output control and handles device specific operations. So system calls का थर्ड टाइप है डिवाइस मैनेजमेंट. इसमें क्या होता है कि जितने भी सारे ऑपरेशंस है लाइक इनपुट आउटपुट जैसे ऑपरेशंस है डिवाइस के, तो वो डिवाइस मैनेजमेंट मैनेज करता है. और इसके अंडर जो सिस्टम कॉल्स है वो है IOCTL फंक्शन एंड ये एज अ इनपुट आउटपुट कंट्रोल रेफर किया जाता है इसको. एंड सिर्फ डिवाइस स्पेसिफिक ऑपरेशंस ही हैंडल करता है. मतलब हर एक डिवाइस के लिए स्पेसिफिक ऑपरेशंस रहेंगे तो वो सब डिवाइस मैनेजमेंट में IOCTL फंक्शन हैंडल करता है. एंड फोर्थ इज़ information maintenance. It handles information and its transfer between the OS and user program. And the Linux system calls under these are get PID function, retrieves process ID of a current process. Then alarm function sets a timer to deliver a signal. Then sleep function pauses the process temporarily. सो इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल का फोर्थ टाइप है. इसमें क्या होता है कि जितना भी इंफॉर्मेशन है एंड OS एंड यूज़र के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हैंडल करता है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस. एंड इसके अंडर सिस्टम कॉल से गेट PID. इसमें क्या होता है कि प्रोसेस ID जो है करंट प्रोसेस में से वो फेच करता है. एंड अलार्म फंक्शन में क्या होता है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम सिग्नल जब जाना हो तो एट अ पर्टिकुलर टाइम सिग्नल के लिए टाइमर सेट किया है, टाइमर सेट कर सकते हैं. अगर कोई सिग्नल डिलीवर करना है तो उसके लिए टाइमर सेट करते हैं. देन थर्ड इज स्लीप फंक्शन. इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोसेस है उसको टेम्पररीली बंद कर देते हैं. जैसे कि हम लोग विंडोज सिस्टम में सिस्टम को स्लीप मोड पे डाल देते हैं तो वो टेम्पररीली क्लोज हो जाता है, परमानेंटली नहीं. एंड अगर शट डाउन किया तो ही वो परमानेंटली क्लोज होता है. वैसे ही स्लीप में वो सिर्फ प्रोसेस को टेम्पररीली पॉज कर देता है. एंड द फिफ्थ टाइप ऑफ सिस्टम कॉल इज कम्युनिकेशन. Used for inter-process communication, IPC. And IPC has two models. First, message passing. Processes exchange messages. And second, shared memory. Processes share a memory region. And the Linux system calls that fall under these are function. First, pipe function. It creates a communication channel between processes using file description. Then second, SHM gate.
function accesses shared memory for communication. Then mmap function maps files or devices into the process's memory for fast access. सो कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल का फिफ्थ टाइप है एंड इसको यूज़ किया जाता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए. इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के दो मॉडल्स हैं, मैसेज पासिंग एंड शेयर्ड मेमोरी. मैसेज पासिंग में क्या होता है कि प्रोसेस मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं एंड शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है कि जो भी मेमोरी रीजन होता है वो प्रोसेसेस शेयर करते हैं. एंड इसके अंडर जो लिनक्स सिस्टम कॉल्स है वो है पाइप फंक्शन, जिसमें कि वो जो भी प्रोसेसेस है उनके बीच में कम्युनिकेशन चैनल बनाता है यूजिंग फाइल डिस्क्रिप्शंस. एंड सेकेंड है SHM गेट. इसमें क्या होता है कि शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करता है कम्युनिकेशन करने के लिए. देन mmap फंक्शन, इसमें क्या होता है कि जो भी फाइल्स या फिर डिवाइसेस है उनको मैप करता है प्रोसेस के मेमोरीज में ताकि वो फास्ट एक्सेस कर सके. So this was it for the Linux kernel, shell and system calls, and I hope you found this video helpful, and if you did, guys, please don't forget to like, share and subscribe to the channel, and thank you for watching till here.